یہاں تو لگتا ہے پہلے سے ہی حالت جنگ ہے۔ گیت نے ارد گرد جلی ہوئی گاڑی پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا۔ چودھری اشفاق بولا، اس کا پاؤں جہاں پڑتا ہے وہیں سے ہنگامے ابھر پڑتے ہیں، بلکہ زمین سے اگاتے ہیں۔ یار میں تو سیاحت کے لیے نکلا تھا، ان مظلوموں کی مدد کرنی پڑ رہی ہے مجھے۔ میں نے بستی کی جانب دیکھ کر کہا تو اکبر نے ہنستے ہوئے پوچھا، یہ تو معلوم ہے نا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کو گھر سے نکلے ہوئے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں اس وقت ہوں کہاں پر، میں نے کہا اور کہکا لگا دیا۔ یوں پوچھو ہمیں پریشان ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں، گیت نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو سبھی ہنس دیے۔ ویسے یہ کہانی ہے کیا؟ جنید نے جلی ہوئی گاڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تو میں نے اسے پوچھ لیا، یہی سنا دوں یا کہیں بیٹھیں گے بھی؟ بیٹھنا کیا ہے، بس نکلے واپس۔ چودھری اشفاق نے کہا، نہیں تم لوگ واپس جانا چاہو تو جاؤ، جب تک، میں نے کہا تو وہ مجھے ٹوکتے ہوئے بولا، ان لوگوں کی پوری طرح سے میں مدد نہ کر لوں، جانتا ہوں یہی کہو گے، لیکن اس نے کہنا چاہا تو میں نے اسے روک دیا، اب خاموش ہو جاؤ۔ وہ سبھی خاموش ہو گئے۔ اس وقت تک چند نوجوانوں کے ساتھ اللہ وسایہ بھی وہیں آ گیا، اسی ہماری باتیں سن لی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ میرے دوست ہیں۔ اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ ادھر آ جائے جی، ادھر آ کر بیٹھے۔ آؤ، میں نے کہا اور اس طرف چل دیا۔ وہ سب بھی میرے پیچھے آنے لگے۔ وہ ایک کچا مکان تھا جس میں 2 کمرے تھے، اس میں چارپائیاں پڑی ہوئی تھی۔ ہم سب وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ وسایہ اور دوسرے لوگ کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگے۔ میں انہیں ساری بات بتاتا رہا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا۔ معاملہ تو خاصا سیریس ہو گیا ہے، اس بار علی نواز نے کہا تو سبھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان نے وہاں لالٹین لا کے رکھ دی۔ تبھی سلیمان نے اسے کہا، آس پاس نگاہ تو ہے نا؟ جی ہے، فوراً پتہ چل جائے گا اگر کوئی خطرہ ہوا تو۔ ٹھیک ہے، دھیان رکھنا، اس نے کہا تو سلیمان نے میری جانب دیکھ کر پوچھا، پتا ہے ہم کہاں ہیں اس وقت؟ واقعی نہیں پتا، میں نے کہا تو وہ بتانے لگا، ہم جنوب کی جانب بھارتی سرحد سے فقط 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، نور نگر سے کوئی 300 کلومیٹر مغرب جنوب کی جانب۔ اتنا سفر کیسے کیا، کیسے پہنچے؟ سلیمان نے پوچھا، میں نہیں جانتا، لیکن تم ایسے کرو، اس وسان شاہ کو ٹریک کرو، وہ کہاں ہے؟ میں نے اس سے کہا، بات کرتا ہوں اروند سے، اس نے کہا اور فون ملانے لگا۔ چند لمحوں بعد اس کا رابطہ ہو گیا، تبھی اس نے اسپیکر کھول کر فون مجھے دیا۔ کیسے ہو اروند؟ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن یہ آپ کو کیا ہوا، کدھر گم ہو گئے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے چھوڑو، یہ فرصت کی باتیں ہیں، تم ایک کام کرو فوری۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے ابھی ان لوگوں نے آپ کو تلاش بھی نہیں کیا ہوگا اور آپ کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا، اروند یار اس وقت نہیں۔ میں نے اسے احساس دلایا۔ اوکے بولیں، اسے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، وسان شاہ نامی کوئی زمیندار ہے، اسے ہر طرح سے ٹریک کرنا ہے، جو بھی اس کے بارے میں پتہ چلے اسے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ میں نے اسے کہا، اوکے میں ٹرائی کرتا ہوں۔ اس نے کہا، پھر ایک دم سے بولا، ایک بات بتانی تھی آپ کو۔ بولو، میں نے کہا۔ جسپال سنگھ گیا تھا ہوگی اور وہاں سے واپس آ رہا ہے کینیڈا، لیکن امرتسر سے نکلتے ہوئے اس نے مجھے ایک بندے کا نام ستنام سنگھ بتایا کہ اسے تلاش کروں۔ اب اندر کی بات کیا ہے میں نہیں جانتا۔ اس نے بتایا، وہ جیسے ہی تمہارے رابطے میں آئے میری بات کروانا۔ میں نے اسے کہا تو اس نے فون بند کر دیا۔ چودھری اشتیاق صحن میں کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ میرے پاس صرف سلیمان اور گیت بیٹھے تھے، باقی سب باہر نکل گئے۔ کافی دیر تک ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے، تبھی چودھری اشفاق اندر آ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، وہ جو وسان شاہ ہے نا، بظاہر تو اس علاقے کا زمیندار ہے، سیاست میں کافی اثر و رسوخ ہے، لیکن ایک بڑا سمگلر ہے۔ اس کا ریکٹ کئی ملکوں تک پھیلا ہوا ہے، وہ پولیس کے بس میں نہیں۔ اس نے اپنے علاقے میں کوئی پولیس چوکی تک نہیں بننے دی۔ پچھلے 10-12 سال سے وہ بہت مضبوط ہوا ہے۔ وہ بہت کم ادھر رہتا ہے، یہاں اس کے کارندے ہی ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، ادھر ہی ہے، کچھ دیر بعد ہی اس کی ویڈیو مل جائے گی، اور یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر کوئی مدد چاہیے تو بتائیں۔ اس نے کہا، کیا خیال ہے پھر اس کا انتظار کرنے کی بجائے وہیں چلتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا، دیکھ لو، مدد آنے میں 4-5 گھنٹے لگیں گے۔ اس نے فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا۔ مدد جب آئے گی سو آئے گی، ابھی نکلیں۔
मैंने कहा तो वो बोला, हम इस तरफ जाएं और वो उधर से धावा बोल दे। वो ठीक कह रहा था। ऐसा मुमकिन था कि वो इस बस्ती पर हमला कर सकते थे। अब तक यहाँ जिंदवाड़ा की बहन मौजूद थी। वो दोस्त बनकर आते या दुश्मन बनकर, जिस सूरत में भी आते, उन्हें यहाँ आना था। अगर बस्ती का एक बंदा भी जख्मी हो जाता तो वो मेरी वजह से जख्मी होना था और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बस्ती के लोगों की हिफाजत किस तरह से हो, मैं यही सोच रहा था कि सलमान के सेल फोन पर अरविंद की कॉल आ गई। उसने फोन मुझे दे दिया। हाँ बोल अरविंद, मैंने कहा। वो आपसे तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर एक ही जगह पर हैं। उसके फोन से थोड़ी थोड़ी देर बाद दोहास नंबर पर बात हो रही है। वो नंबर पाकिस्तान के ही हैं। उनका फासला भी यही इसी रेंज में है। इन नंबरों को चेक किया तुमने? जी। वो आपके नजदीक नहीं है, काफी दूर हैं। उनकी लोकेशन भी एक जगह की है। मैं उनके नाम और नंबर भेज रहा हूँ। उसे तेजी से बताया, भेज दो, लेकिन पहले मेरी बात उनसे कराओ। मैंने कहा, 1 मिनट होल्ड करें। उसने कहा और कुछ देर बाद मैंने कॉल मिला दी। दूसरी जानब कोई भारी आवाज में हेलो हेलो कर रहा था। तभी मैंने कहा, वसान शाह बात कर रहे हो? हाँ, मगर तुम कौन? उसने हैरत और रौब से कहा तो मैं खुरदरे लहजे में बोला, मैं वही जिसने जिंदवाड़ा को आज बस्ती में नचाया है। अब वो सारी जिंदगी नाचता रहेगा। तुम? उसने हैरत से कहा, फिर बोला, ये नंबर तो। वो कहते कहते रुक गया। तुम अगर इस सहरा में बैठकर अपना रैकेट बना सकते हो तो क्या मैं नहीं? मैंने हकारत से कहा, कौन हो तुम? उसे संजीदा लहजे में कहा, यह सवाल कबल अज वक्त है। अभी तुम मुझे ये बताओ, जिंदवाड़ा की बहन को कब लेने आ रहे हो? मैं इंतजार कर रहा हूँ। मजा तो तब है कि तुम खुद उसे लेने आओ। मैंने इसी हकारत से कहा तो लम्हा भर खामोश रह कर बोला, चाहते क्या हो? तुमसे मिलना है, बाकी बातें करनी है तुमसे। मैंने गुस्से में कहा, तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम अनजाने में मेरा सामना करना चाहते हो। अब भी वक्त है। इस लड़की को इसके घर छोड़ाओ और उन बस्ती वालों को उनके हार पर छोड़कर यहां से चले जाओ, वरना क्या करोगे? मैं सुनना चाहता हूं। मैंने सख्ती से पूछा। मैं सिर्फ एक शख्स को नहीं मारता, उसकी पूरी नस्ल खत्म करता हूं। उसने कहा तो मेरा गुस्सा एकदम से खत्म हो गया। मुझे उस पर हंसी आने लगी। इतना बड़ा बोल कोई बेवकूफ ही बोल सकता था। तो फिर सुनो, वो लड़की तब तक यहीं रहेगी जब तक तुम उसे लेने नहीं आओगे। आओगे ना? मैंने पूछा तो वो फिर खामोश हो गया। चंद लम्हे खामोशी के बाद बोला, चल फिर मेरा इंतजार कर। लो फिर शुरू हो गया इंतजार। मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। मैंने चंद लम्हे सोचा और सलमान को फोन देते हुए कहा, चलो तैयार हो जाओ, वसान शाह के यहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या करता है। मेरी बात सुनकर सभी मेरी तरफ देखने लगे, मगर मुझे ये यकीन था कि कोई भी मेरी बात टाल नहीं सकता था। उन्होंने एक दूसरे की जानिब देखा और जाने के लिए उठ गए। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम वसान शाह की हवेली से आधा किलोमीटर के फासले पर खड़े थे। मेरा अरविंद से मुसलसल राब्ता था। वो मुझे बता रहा था कि वसान शाह अब तक वही है जहां पहले था। अब उसने तीसरे फोन पर राब्ता शुरू कर दिया था। मैं जानता था कि सहरा में दुश्मन की आमद का एहसास किस तरह किया जाता है। यहाँ लोमड़ी की तरह चुकन्ना रहना पड़ता है। जिस तरह मैंने कूक का फायदा उठाया था, बिल्कुल इसी तरह बस्ती से बाहर इसके आदमी जरूर मौजूद थे। मुमकिन है उन्होंने हमें देख भी लिया हो। रास्ते में चौधरी इशफाक के सेलफोन पर कुछ वीडियोज आ गई थी। वो इसी इलाके में, इसी बस्ती और वसान शाह की हवेली के बारे में थी। उन्हें देखकर मैंने एक प्लान बना लिया। मैं इस हवेली में घुसकर उसे पकड़ना चाहता था। मैंने ये प्लान सबसे डिस्कस कर लिया था। जहां हम रुके थे वहां से काफी दूर एक हवेली की थोड़ी बहुत रोशनियां दिखाई दे रही थी। हम कुल 12 लोग थे। हम में से 4 लोग गाड़ियों के ड्राइवर थे। हमने आधा किलोमीटर पहले ही गाड़ियां छोड़ दी। हमारे पास वही असला था जो ये लोग अपने साथ लेकर आए थे। हमला आवरों से चुप ना हुआ। कारआमद असला उन्हें ही दे आया था। हम 2-2 में बंटकर आगे बढ़ने लगे। मेरे साथ अली नवाज था। सलमान एक बहुत ही अहम और कारआमद शय अपने साथ लाया था। वो चंद किलोमीटर की रेंज पर चलने वाले नन्हे नन्हे से वॉकी टॉकी थे। वो गर्दन के साथ लगा दिए जाते थे और उनका माइक कान के लोब के साथ था
और रिसीवर कान के अंदर थे। इससे हम एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। चारों जानब अंधेरा था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। हल्की आवाज में हम एक दूसरे से बात कर रहे थे। हम इस हवेली से दिखाई देने वाली रोशनियों को सामने रखकर बढ़ते चले जा रहे थे। तभी सलेमान की आवाज उभरी, हम हवेली की जुनूबी समत में पहुंच गए हैं। हमारे सामने एक ऊंची दीवार है। वह कम से कम 12 फुट की तो होगी, मगर है कच्ची। इस पर चढ़ा जा सकता है। गीत ने कहा, तुम्हारे पास कील तो है नहीं जिन पर चढ़कर तुम। अकबर ने कहा, फिक्र नहीं करो, हम एक दूसरे के कांधों पर सवार हो जाएंगे। गीत ने हल्का सा कहका लगाते हुए कहा तो अली नवाज बोला, फरीद जल्दी इनके पास पहुंचो, तुम ही इनका वजन उठा सकते हो। ओ किधर हो तुम लोग? फरीद ने कहा तो सलमान उसे समझाने लगा। कुछ ही देर में हम सब उसके पास पहुंच गए। फरीद नीचे खड़ा हुआ, उसके कांधों पर सलमान, और फिर गीत चढ़ी तो वो बआसानी दीवार के सिरे पर पहुंच गए। सामने तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तकरीबन 200 फुट दूर गेट है, वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा ख्याल है अंदर जाने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। गीत ने ये सब तेजी से कहा, चलो फिर जल्दी करो। मैंने कहा तो सिवाय मेरे और फरीद के सभी दीवार के पार पहुंच चुके थे। गीत और सलमान दूसरी जानब उतर गए। मैं कोशिश करता हूं गेट खोलने की। अली नवाज ने कहा, ऐसी गलती मत करना, वो देखो सामने सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकला है। अकबर ने कहा, मिल गया। जुनैद ने पुरजोश लहजे में कहा, क्या मिल गया तुम्हें? एक साथ कई लोगों की आवाज उभरी, वो देखो सामने पानी वाला पाइप पड़ा है, उसे दीवार की दूसरी जाने फेंको, कम से कम जमाल तो आ जाएगा। चौधरी इशफाक ने कहा, फरीद का वजन ज्यादा है। अकबर बोला, वो बाहर ही रहेगा। मैंने कहा तो अगले चंद लम्हों में पाइप का एक सिरा मेरी जानब आ गया। फरीद ने उसे पकड़ा तो आसानी से दीवार पर पहुंच गया। कुछ फासले पर रिहायशी 2 मंजिला इमारत थी। मैंने एक निगाह देखा और फौरी दूसरी जानब कूद गया। हम अंधेरे में ही फैलकर रिहायशी इमारत की जानब चल पड़े। उसके 2 ही दरवाजे थे, एक पिछली जानब जो बंद था और बाकी एक ही बचा था जो सामने की जानब था। नीचे किसी भी तरफ कोई खिड़की दिखाई नहीं दे रही थी। तभी मैंने फैसला कर लिया। मैंने सलमान से कहा, फोन निकाल करो, विसान शाह का नंबर मिलाओ और उसे बाहर निकलने पर मजबूर करो। जहां हम हैं विसान शाह वहां पर नहीं है। सलमान ने मायूसी से कहा, किसने बताया और कहां से? मैंने तेजी से पूछा। मुझे अरविंद ने बताया है कि वसान शाह इस वक्त हम सब की जानब ही लम्हा बलम्हा बढ़ता आ रहा है। जहां वो सुबह से था और अब वहां नहीं है। हम पहले, मैंने कहना चाहा तो वो बोला, मैंने ये भी अरविंद से पूछा है, वो जगह भी यहीं कहीं नजदीक है, बस चंद लम्हों। बाहर एक गाड़ी है 4 व्हील, उसके पीछे भी गाड़ियां हैं। फरीद की आवाज उभरी, कितने लोग हैं? मैंने पूछा, काफी दूर हैं, 3-4 गाड़ियों की हेडलाइट्स हैं, फरीद ने बताया। अच्छा कुछ इंतजार करो, तुम नंबर मिलाओ विसान का, मैंने तेजी से कहा और दीवार के साथ दबक गया। जैसे ही सलमान ने फोन निकाल कर नंबर मिलाए, मैंने फोन की चमक देखी। वो इस जानब बढ़ गया, वो मेरे करीब ही था। जब उसने मुझे फोन थमाया तो दूसरी जानब हेलो हेलो हो रही थी। वसान शाह तुम आए नहीं अभी तक, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अच्छा तुम हो, तुम्हें अपनी बर्बादी की इतनी जल्दी क्यों है? उसने हकारत से कहा, तुम आओ तो सही, या फिर मैं आ जाऊं? मैंने कहा, वैसे इतनी बात कहने पर मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूं, या शायद तुम अनजाने में इतनी बड़ी बात कह गए हो। उसने कहा और कहका लगा दिया। वो गेट पर आकर रुक गए हैं, फरीद ने इस दौरान बताया। 3 सिक्योरिटी वाले गेट पर आ गए और उनमें से एक गेट खोलने लगा। मैंने बात जारी रखी, बड़ी खूबसूरती से भाग रहे हो यार अपने कारिंदे की। मैंने कहना चाहा तो वो डांट देने वाले अंदाज में बोला, ओए मेरे साथ तमीज से बात करो। मेरी निगाह सामने गेट पर थी। गेट खुल गया, एक 4 व्हील अंदर आ गई, उसके साथ ही दूसरी गाड़ियां भी अंदर आ गई थी। सीधी पोर्च में आकर रुकी तो मैंने कहा, तो फिर ये कैसे तय हो? बातें तो उस वक्त होंगी जब हम आमने सामने होंगे। अपने घर में बैठा हुआ कुत्ता बहुत भौंकता है। ओए यही बात अगर मैं तुमसे कहूं तो? उसने कहा। मैं देख रहा था कि एक भारी तनुतोष का शख्स पैसेंजर सीट से उतरा था। उसने कान के साथ सेलफोन लगाया हुआ था। दूसरे लोग भी तेजी से उतर आए थे। तो फिर मैं ये करता हूं,
ये कहते हुए मैंने अपना पिस्टल सीधा किया और फायर कर दिया, जो उसके दाएं कंधे से जरा नीचे लगा। उसका सेल फोन छूटकर न जाने किधर गया। हमारी तरफ से एक जबरदस्त ब्रस्ट मारा गया। अगले ही लम्हे हम अपनी जगह छोड़ चुके थे। सामने लोग गाड़ियों के पीछे छुप गए थे। उसके साथ ही उधर से फायरिंग होने लगी। हमारा और गाड़ियों का फासला तकरीबन 100 फुट का था। मैंने उसी लम्हे कहा, इन्हें अंदर नहीं जाने देना। अगले ही लम्हे सब उस जानब फायर करने लगे जिधर से वो अंदर जा सकते थे। वो गाड़ियों के आसपास से फायरिंग कर रहे थे। मैं वहां से निकला और उसी जानब बढ़ने लगा। मैं जाकर रिहायशी इमारत की दीवार के साथ लग गया। मेरे पीछे अली नवाज था। मैंने अपनी जेब से हैंड ग्रेनेड निकाला और पिन खींचकर गाड़ियों की जानिब फेंक दिया। अगले चंद लम्हों में धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत से हम लरस गए। उसके सामने साथ ही कई चीखें बुलंद हुई। हमने उन्हें मजीद फायरिंग करने का वक्त ही नहीं दिया। पहले थोड़ा बहुत फायर हुआ था, लेकिन धमाके के बाद एकदम से सन्नाटा छा गया। मुझे कवर दो, मैं इमारत के सामने जाने लगा हूं। ये कहते हुए मैं दीवार से निकला और इमारत के सामने चला गया। वसान शाह एक जानब गर्दन ढलकाए एक गाड़ी के साथ छुपा हुआ था। उसके साथ वाली गाड़ी जल रही थी। कई लोग पक्की सड़क पर पड़े थे। मैं जाते ही स्तून की ओट में हो गया। एक ब्रश पड़ा और सामने कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने जाते ही वसान को पकड़ लिया। वो सांस ले रहा था। मैंने उसे घसीटा और पोच से बरामदे में ले आया। फायरिंग और धमाके की आवाज सुनकर वहां कोई भी नहीं आया। गेट खाली हो चुका था। सिक्योरिटी वाले जमीन पर पड़े थे। जुनैद तेजी से कह रहा था, फैल जाओ, इन सबको यहीं ढेर कर दो। मुझसे पहले अली नवाज अंदर जा चुका था। वहां बहुत बड़े ड्राइंग रूम में कोई नहीं था। मैं वसान शाह को घसीटता वहां अंदर की जानिब ले जाने लगा। लोगों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करो, मैंने कहा तो बाहर एकदम से फायरिंग रुक गई। उसके साथ ही जुनैद की आवाज बुलंद हुई, जिसे जिंदगी चाहिए वो बाहर आ जाए। जरा सी भी हरकत की तो गोली मार दूंगा। वो बाहर कवर कर रहे थे। मैंने वसान शाह को कलीन पर सोफे से टिका दिया। उसके कांधे से खून निकल रहा था। अली नवाज ने उसकी तलाशी ली। मुतमईन होकर वह पीछे हट गया। वसान शाह ने कराहते हुए आंख खोल दी और मेरे चेहरे पर देखा। उसकी आंखों में कई सवाल थे। तभी मैंने कहा, मैं तो ऐसे ही करता हूं, कहो क्या कहते हो। तुमने अनजाने में मारा है, उसने कराहते हुए कहा। तो ड्राइंग रूम के एक कोने से खौफजदा आवाज उभरी, खुदा के लिए इन्हें मत मारे प्लीज। मैंने उस जानब देखा तो एक कामनी सी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर बेचारगी फैली हुई थी। अली नवाज उसे कवर कर चुका था। मैंने पिस्टल की नाल वसान शाह के माथे पर रखी और पूछा, कौन है ये। बीवी मेरी, वो बहुत मुश्किल से बोला। तो मैंने उसे पास आने का इशारा किया। वो खौफजदा सी मेरे सामने आ गई। मैं एक जानब हट गया। वो तेजी से उसकी जानब बढ़ी। उसने बेहद जज्बाती अंदाज में रोते हुए वसान शाह से कहा, साईं ये क्या हो गया, मुझे बताओ मैं क्या करूं। उसके यूं पूछने पर वसान शाह ने मेरी जानब देखा। उसकी आंखों में बेचारगी की बजाय अब भी गुस्सा छलक रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे खत्म कर दे। तभी बाहर से जुनैद की आवाज आई, हर तरफ से काबू पा लिया गया है। अब यहां सब साफ है। सिर्फ 2 बंदे मरे हैं, बाकी 6 जख्मी हैं और 3 सिक्योरिटी वाले भी हैं। वो बिल्कुल ठीक है। घर में से 2 नौकर हाथ लगे हैं। बाकी लाशें छोड़कर सबको बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया है। अकबर ने तफसील बताई। अपनी बीवी को बताओ क्या करे वो। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं इस वक्त यही सोच रहा था कि शायद अब भी वो माफी मांगकर बस्ती वालों को तंग ना करने का कह दे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। वो कुछ नहीं बोला। तो वो कामनी सी औरत लरसते हुए मेरी जानब बढ़ी। उसने दोनों हाथ बांधे हुए थे और रोते हुए कह रही थी, खुदा के लिए इसे माफ कर दे, हम यहां से चले जाएंगे। आप लोग जो चाहते हो वो ले लो, मेरे साईं को छोड़ दो प्लीज। ये वादा कर ले आइंदा इन बस्ती वालों को तंग नहीं करेगा। मैं इसे छोड़ दूंगा। मतलब आप इन्हें माफ कर देंगे, उसने बेचारगी से पूछा। मुझे उस पर तरस आने लगा। मैंने अली नवाज की जानिब देखा। उसके जबड़े भिंचे हुए थे। हाँ, मैं इसे छोड़ दूंगा, मेरी इससे कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, मैंने कहा। तो वो कामनी सी औरत मेरी जानब देखती रही, फिर खुद पर लिपटी हुई चादर उतारकर एक जानब फेंक दी। उसकी बगल में पिस्टल दबा हुआ था। मेरे जहन में पिस्टल दबा हुआ था।
मेरे ज़हन में भी नहीं था कि ऐसी सूरत-हाल भी हो सकती है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पर अफसोस भी ना कर सका कि उसने पिस्टल मेरी जानब तान लिया। तभी वसांत शाह बड़े जोश से बोला, मार दे, गोली मार दे इसे। लेकिन अगले ही लम्हे उसने पिस्टल का रुख वसांत शाह की तरफ कर दिया। फिर इंतहाई तलही से बोली, आज ही तो मुझे यहां से आजादी नसीब होने वाली है और मैं ये मौका गवा दूं। ये कहते हुए वो वसांत शाह के करीब गई और उसने पिस्टल उसकी रान पर रखकर गोली चला दी। वो तड़प कर चीखने लगा। उसकी आंखें फटी हुई थी। फिर वो कामनी सी औरत सीधा होकर बोली, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम क्या समझते हो? कोई तुझे पूछने वाला नहीं होगा। मुझे तुमसे नफरत है, सख्त नफरत। ये कहते हुए उसने आंखें बंद की और फायर उसकी दूसरी रान में कर दिया। मत मारो, वसांत शाह रहा। मेरी जिंदगी के 3 साल मैंने तेरी कैद में जिस तरह गुजारे हैं, मुझे पता है। तू जिंदा इंसानों का व्यापारी, तुझे इसी तरह कुत्ते की मौत मारने के लिए मैंने दिन रात दुआएं की हैं। मुझे माफ कर दो, मैं तुझे। उसने इधर उधर सर मारते हुए कहा, नहीं, कोई दूसरा नहीं, मैं तुझे मारूंगी। कोई दूसरा तुझे क्यों मारे? ये कहते हुए उसने अपनी आंखें उस पर जमाते हुए फायर कर दिया। फिर लगातार फायर करती चली गई, यहां तक कि सारी गोलियां खत्म हो गईं। वसांत शाह मर चुका था। वो नफरत से उसे यूं देख रही थी जैसे उसका इंतकाम अभी पूरा ना हुआ हो। कुछ देर वो उसकी जानब देखती रही, फिर पिस्टल पहनकर मेरी जानब पलट आई। अब चाहो तो मुझे मार दो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हम डाकू हैं। हम तो बस्ती वाले मजलूमों के लिए यहाँ आए थे। अब हमें यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। मैं पलटने लगा तो बोली, प्लीज मुझे भी साथ ले जाएं, वरना यहाँ के लोग मुझे कभी नहीं निकलने देंगे। वो बोली, अब तुम आजाद हो, जहां चाहो जा सकती हो। वसांत शाह की मौत तो हमारे खाते में होगी। मैंने कहा, तुम अब निकलना भी चाहो तो इतनी जल्दी नहीं निकल सकते। जिन लोगों को यहाँ काबू किया है वो तो कुछ भी नहीं है। इससे कई गुना लोग अभी डेरे पर हैं। वहां पता नहीं किन किन लोगों को मेरी तरह अगवा करके रखा हुआ है। उन्हें हवेली में होने वाले वाक़े का पता चल गया होगा। वो यहाँ आते ही होंगे। वो कह रही थी कि मैंने तेजी से कहा, वसांत शाह का फोन तलाश करो, फौरी। फिर उस औरत से पूछा, कहाँ है डेरा? यहां से थोड़े ही फासले पर है। उसने कहा तो गीत की आवाज उभरी, मैं अंदर आ रही हूं, इसे मेरे हवाले कर दे, बाकी मैं देखती हूं। आ जाओ। मैंने कहा तो चंद लम्हे बाद गीत अंदर आ गई। उसे वसांत शाह का फोन मिल गया। वो चल रहा था। उस पर कई काले आ चुकी थी। बाहर 2 गाड़ियां तेजी से इस तरफ आ रही थी। अचानक फरीद की आवाज गूंजी तो मैं चौंक पड़ा। वो सच कह रही थी। गीत ने मेरी जानब देखा और बोली, फरीद, वो जो कोई भी है तुम सामने मत आना, सारे छुप जाओ। जुनेद बोला। मैंने कहा, तो वो लोग बाहर आ जाएंगे। अगर आप मुझ पर एतमाद करके मुझे फोन दे तो मैं इन्हें ट्रेप कर लूंगी। उस कामनी औरत ने कहा, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, देख लेंगे हम। ये कहते हुए गीत आगे बढ़ी और उसने उसी के आंचल से उसे बांध दिया। उसने जरा सी भी मुजाहमत नहीं की। वो लोग गेट के बिल्कुल पास हैं, फरीद ने बताया। आ जाने दो, हम संभाल लेंगे। जुनेद की आवाज उभरी। तभी मैंने गीत को उस कामनी औरत का ख्याल रखने का कहकर बाहर की जानब झांका। वो 4 व्हील पार करके अंदर आ गई। जब तक सारे बाहर न आ जाए कोई फायर न करे। फरीद, तुम गेट के बिल्कुल सामने आ जाओ, जो भी निकले खत्म कर दो। जुनेद की आवाज उभरी। वो 4 व्हील वहां चंद मिनट रुकी। शायद वो माहौल का जायजा ले रहे थे। फिर उनमें से एक एक करके लोग निकलने लगे। वो कुल 7 लोग थे। वो सब उतर कर वहां का जायजा लेने लगे थे। हम सभी सांस रोके इन्हें देख रहे थे। वो हमसे कुछ फासले पर पोर्च में खड़े थे। उनमें से किसी के हाथ में गन थी तो किसी के हाथ में पिस्टल थी। वो सड़क पर जमे हुए खून को देख रहे थे। वो सब तशवीश से कभी गाड़ियों को देख रहे थे, कभी इमारत को। अचानक उनमें से किसी ने सेल फोन निकाला और नंबर मिलाकर राब्ते का इंतजार करने लगे। अंदर गीत के हाथ में पकड़ा हुआ वसांत शाह का सेल फोन बज उठा। गीत ने उस कामनी औरत के पास ले जाकर फोन का स्पीकर खोल दिया। साईं, हैरियत तो है ना? नहीं, हैरियत नहीं है, उस कामनी औरत ने कहा। बीबी साईं आप? आवाज उभरी तो उसने कहा, हाँ मैं। यहाँ कुछ लोग आए थे और साईं को उठाकर ले गए हैं। तुम लोग अब आए हो? हम तो फौरी आ गए हैं। उसने शर्मिंदगी से कहा, कितने लोग हैं वहां डेरे पर? उसने पूछा। यहाँ 4-5 हैं।
اب वहां पर उसने कहा तो जाओ अपनी साईं का पीछा करो। ये कहते हुए उसने फोन बंद कर दिया। उसने बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया था। वो हमारे साथ पूरा तावन कर रही थी। उसने उन्हें ये बावर करा दिया था कि अब यहां पर कोई हमलावर नहीं। डेरे पर लोगों की तादाद पूछ ली और उन्होंने फौरन ये इतला डेरे पर कर देनी थी। मुमकिन है वहां से भी लोग निकल पड़े, मैंने फौरन कहा। उसी बंदे ने दोबारा फोन करना है। ये कर ले तो इन सबको काबू में करना है, जिंदा हो तो बेहतर है। मेरे कहते ही सभी ने हंकारा भरकर मुझे बता दिया कि वो बात समझ गए हैं। वो बंदा नया नंबर मिलाकर राब्ता कर रहा था। उसने ऊंची आवाज में तेजी से वसान शाह के अगवा की इतला दी। जैसे ही उसने फोन बंद किया, जुनैद की गरजदार आवाज गूंजी, कोई ना हिले वरना गोली मार देंगे। उसकी आवाज जैसे ही गूंजी उन्हें जैसे करंट लगा हो। वो हैरत से इधर उधर देखते हुए अपनी गन्ने सीधी करने लगे थे। तभी अकबर ने कहा, हाथ ऊपर कर लो। उसके साथ ही उसने फायर कर दिया। उनमें से एक ने फायर किया तो उसे कई गोलियां लगी। बाकी ने घबरा कर असला फेंका और हाथ ऊपर कर लिए। फिर इन्हें काबू करने में वक्त नहीं लगा। हमने इन्हें बताया ही नहीं कि अंदर क्या हो चुका है। हमने इन्हें कमरे में बांध कर डेरे की जानिब चल दिए। वो कामनी सी औरत भी हमारे साथ ही चल दी। हम इन्हीं की लाई हुई गाड़ी में बैठे और वहां से चल दिए। वो डेरा हवेली से थोड़े ही फासले पर था। हमने हेडलाइट्स बंद की हुई थी। वो भी डेरे के करीब ही थे कि अंदर से गाड़ी तेजी से निकली और सन्नाटे से आगे बढ़ती चली गई। उन्हें देखते ही जुनैद ने अपनी गाड़ियों के ड्राइवर से फौरन अलर्ट हो जाने का कहा। इतने में इस कामनी सी औरत ने वसान शाह के फोन से राब्ता करके उन्हें वापस आने का इशारा किया। कहाँ हो तुम लोग? उसने वहशत भरे लहजे में कहा। बस बीबी साईं पहुंच रहे हैं। डेरे पर है कोई? उसने पूछा। अभी तो कोई नहीं है, सारे आ गए हैं। दूसरी जानब से आई। पागल हो गए हो? डेरा हाल ही छोड़ रहे हो? फौरन वापस आ जाओ, बाकी गए हैं साई की तलाश में, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। कुछ देर पहले का तजर्बा मेरे सामने था। हमने इंतहाई सूरत से गाड़ी डेरे में दाखिल तो कर दी, लेकिन मैं इंतहाई चौकन्ना था। वहां कुछ भी नहीं था। कच्चे कमरे थे जैसे मवेशियों को रखने के होते हैं। आम से पीले मदकूक बल्ब जल रहे थे। एक जानब जनरेटर चल रहा था। वो आम सा नहीं था, काफी ताकतवर लग रहा था। तभी जुनैद के मुंह से बेसाख्ता निकला, ये क्या? यहां तहखाना है, वहां है अगवा करके रखे गए लोग, मनशियात और न जाने क्या क्या। वो कामनी सी औरत बोली, चलो इन सबको निकाल कर लाएं। गीत ने उससे कहा तो वो नीचे उतर गई। हम भी उसके साथ उतरने लगे। हम चुकन्ना थे, किसी भी तरह के हालात के लिए तैयार थे। हम बढ़ते हुए इन कच्चे कमरों तक जा पहुंचे। वो कामनी सी औरत एक कमरे में जा पहुंची। उसने एक जगह से अलमारी खोली तो अंदर से रास्ता नीचे जाता हुआ रास्ता दिखाई दे रहा था। वो कामनी सी औरत बेधड़क अंदर उतर गई। मैंने सबको वहीं रहने का इशारा किया और उसके पीछे चल दिया। मेरे पीछे गीत उतर आई। तकरीबन 25 सीढ़ियां उतरने के बाद मेरे सामने एक हाल था। वहां का मंजर इंतहाई वहशतनाक था। दीवारों के साथ 3 मर्द बंधे हुए थे। उनके तन पर बराए नाम कपड़े थे। वो नीम बेहोशी की हालत में थे। उसी तरह दूसरी दीवार के साथ 4 औरतें बंधी हुई थी। उनका भी वही हाल था। उनके जिस्म पर कपड़े चीथरों की सूरत में थे। ओह, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। तो वो कामनी औरत बोली, अभी ये चंद लोग हैं, मुमकिन है दूसरे हाल में भी हो। मेरी तबीयत ऊब गई थी। मुझे इंसानियत के इन दुश्मनों पर सख्त गुस्सा आने लगा। मैं इन्हें देख रहा था। मैं जिन्हें औरतें समझ रहा था, उनमें से एक ने सर उठाकर हमें देखा। उसकी दाढ़ी थी। वो कोई सिंह नौजवान था। चलो ऊपर, मैंने कहा। इन्हें लेकर नहीं जाना, उस कामनी सी औरत ने पूछा। तो मैंने कहा, बाहर वालों से निबट लें। ये कहकर मैंने चौधरी इशफाक को मुहातब करके कहा, पुलिस से राब्ता करो और उन्हें यहां फौरी पहुंचने का कहो। अगर नजदीक कहीं रेंजर हो तो वो आ जाए। बाहर जो भी लोग हैं इन्हें जिंदा पकड़ना है। इनसे बहुत कुछ पूछना है। वो आगे हैं, अकबर ने कहा। वो तेजी से अंदर आएंगे, उन्हें अंदर आते ही दबोचना है। जुनैद ने कहा तो चौधरी इशफाक की पुलिस या रेंजर के लिए राब्ता करने की आवाजें आने लगी। कुछ ही देर के बाद यूं लगा जैसे पकड़ धकड़ होने लगी है। चंद मिनट के बाद जुनैद ने क्लियर हो जाने की आवाज लगा दी। चौधरी इशफाक ने अपनी गाड़ियां फौरन मंगवा ली थीं। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।